ओके, सो ये जो नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, दिस एक्सरसाइज आर नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनकी बातों में आप लोग ना आए बिल्कुल भी, और इस एक्सरसाइज को जरूर करें। तो ये लिख रखा है लेकिन ये सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रूथ। इससे भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं पेपर में कई बार। सो we have discussed all that exercise from this chapter. Now let us start. Now let us start this exercise 5.4, optional exercise from chapter 5. Look at this question number 1. Which term of the AP is first negative term? So let me write the given data. A given है यहाँ पे 121 AP में. D is 117 minus 121 is equal to minus 4. D is minus 4. A is given and we need to find N. Which term is first negative term? So what is the value of an? An is less than 0. Negative मतलब 0 से छोटा होगा an की value, right? So now we know the formula of an. An can be written as a plus n minus 1 into d. So let us apply this identity for nth term. nth term के लिए use करते हैं. So a की जगह पे लिख सकते हैं it's 121 plus n हमें पता नहीं है and d is minus 4. सो बेसिकली इट इज लेस देन 0. ये 0 से छोटा आना चाहिए, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है an की. 0 से छोटा कौन सी वैल्यू आएगी, राइट? सो इट्स 121 प्लस, ओपन द ब्रैकेट, इट बिकम minus 4 multiplied with n minus 4n multiplied with 1 will become plus 4 is less than 0. So minus 4n plus 124 is less than 0, right? Now take this 4n on this side, it become 124 4n. Take this 4 in the divide, so it's 124 by 4. So we can say that n is greater than 4. It's I have done a mistake here. It's not 124. It's 125. Right? It's 125. 125 upon 4. 125 upon 4 is equal to 4 3s are 12. 4 1 जा 4. 4 2 जा 8. So जो n की जो वैल्यू आई है हमारे पास, the value of n is, we can say that greater than 31.2. 31.2 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा? सो 32. सो द वैल्यू ऑफ एन इज 32. सो कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? सो 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस केस, राइट? So look at this question number 2. In this question, the sum of first, third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 term of the AP. So first of all, write the given data. Sum of third and seventh term. So A3, sum of third and seventh term A7. तो ये थर्ड टर्म है और ये सेवंथ टर्म है, इनका सम गिवन है 6, राइट? एंड देयर प्रोडक्ट, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेवंथ टर्म से इट इज गिवन 8. So these two things are given here and what we need to find here, the sum of first 16 term. So S16 हमें यहाँ पे find out करना है. So this is the given data and this is what we need to find in this question. Now look at this. Use this equation 1. इस equation 1 को use करते हैं तो A3 आएगा A plus 2D and A7 आएगा A plus 6D is equal to 6, right? And then when we open the bracket or when we solve this equation number 2, so it become A plus 2D and it become A plus 6D. इनका मल्टीप्लीकेशन. अच्छा यहाँ पे तो प्लस आना है ऊपर, यहाँ पे आएगा प्लस, इट्स प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों का आएगा, मल्टीप्लाई इज 8, राइट? नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, प्लस वाली इक्वेशन से, तो इट बिकम 2A plus 8D इक्वल टू 6 और वी कैन से दैट A इज इक्वल टू, टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 minus A equal to 3 minus 4D, right? Suppose this is equation third. Now
Put this equation 3 in equation 4. Put equation 3 in equation 4. So equation 3 में a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 minus 4d in this equation. So it become a plus a की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है. It become 3 minus 4d plus 2d यहाँ पे, एंड a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3 minus 4d plus 6d equal to 8. Right, now let us solve it. So it become 3 minus 2d. It become 3 plus 2d. So यहाँ पे a minus b, a plus b, तो a square minus b square. Then let us solve it further. So 4d square can be written as 9 minus 8 become 1. D is 1 by 4, root of 1 by 4. So D can be written as plus minus 1 by 2. So D की दो वैल्यू आ गई है, प्लस माइनस 1 by root 2. So अगर D होगा 1 by root 2, तो A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. What is the relation between A is equal to 3 minus 4D? 3 minus 4D. So A is equal to 3 minus 4 into 1 by 2. So A is equal to 3 to the 6 minus 4 2 is 1. So A 1 आ रहा है when D is 1 by 2. और D में भी negative 1 by 2 also. So when D is negative 1 by 2, so find the value of A in that case also. So the value of A in that case is 3 minus 4 into minus 1 by 2. 3 to the 6 plus 2 10, A is equal to 5. So दो वैल्यू आ रही है, A की यहाँ पे A और D की, और हमें फाइंड करना है S16, 16th term. So S16 is equal to, let us apply the formula of n by 2, 2A plus n minus 1 into D. So n कितना है यहाँ पे, n है 16. A पहले ये वाली वैल्यूज लेते हैं, when A is 1 and D is 1 by 2. A को 1 लिया और D को 1 by 2. So 16 minus 1 15 और ये 1 by 2. So it become 8. 2 plus 15. It's if I take the LCM 2 to the 4, it's become 19 by 2. 2 cancel this 4 times. 19 4 the 76. So the x16 value is 76 in this case. And in the second case, it is the case 1. In the case 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 by 2. A कितना है, A है 5. 5 into 2 plus 16 minus 1 15 into minus 1 by 2. So it become 8. 10 10 minus 15 ये आएगा minus 5 by 2. 10 20 it become plus 5 by 2. 2 cancel this 4 times, 5 4 the 20. The sum in this case is 20. So there are two answers in this case. One is 76 and one is 20. I hope this question is clear to you. Anyone, could you please check the answer for this? Yes, sir. Yes, it's right. Okay. Now let's move to the next question. Look at this next question here, question 3. A letter has CD, एक CD है, has 25 runge. Runge means जो CD के यहाँ पे बीच में ये जो स्टिक ऐसे लगी होती हैं, like this. These are the runge. ये तो CD के जो बीच के डंडे होते हैं वो 25 मीटर अपार्ट हैं. ये runge, these are the runge. राइट, एंड दीज रंज आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट. इनके बीच में गैप कितना है, एक रंज के बीच में 25 सेंटीमीटर. ठीक है, पहले रंज की लेंथ कितनी है 45 और लास्ट वाले की कितनी है 25 सेंटीमीटर. टोटल गैप कितना है 2 1 by 2. 2 1 by 2 मीन्स 5 by 2 मीटर. 5 by 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इट बिकम 250 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। द रंज डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली in a length of 45 at a bottom and 25 at the top. If the top of the bottom range is 1/2 1 meter apart, what is the length of the wood required for the range? तो रंज बनाने के लिए what is the length of the wood required? So रंज जितने बीच में उनके जो बीच में ये लगते हैं इस तरह से horizontally, उनकी लेंथ निकालने के लिए उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, उनकी नंबरिंग कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है 45 है, पहले की लेंथ 45 है और लास्ट की लेंथ 25 है, ठीक है। सो ए हमारे पास 45 है और ए एन लास्ट वाली जो टर्म है वो 25 है। अब हमें इसमें एन का पता लग जाए, अगर एन का हमें पता करना है और हमें फाइंड करना है एस एन, सम होगा दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रंज, ठीक है। सो एन इज नंबर ऑफ रंज, एक रंज ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट दिस नंबर ऑफ रंज इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज, सो द नंबर ऑफ रंज इन दिस केस इज नंबर ऑफ रंज n इज इक्वल टू, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, टोटल डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है और दो रंज के बीच में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूं इधर। ये पहले वाला है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है और फिर यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, एक के बीच में जो गैप है इन दो के बीच में वो 25 सेंटीमीटर का गैप है हर एक के बीच में, ठीक है। हर एक के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। और जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो रंज होगी ये वाली, और ये बीच में भी बहुत सारी रंज हैं, इनका हमें पता नहीं है कितना गैप है, तो इनके बीच में जो गैप है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी जो गैप होगा ये इन दोनों के बीच में वो भी 25 सेंटीमीटर का ही गैप है। वो जो टोटल गैप इन्होंने दिया है, द टोटल गैप गिवन हियर फ्रॉम दिस रंज, ऊपर वाली से नीचे वाली रंज तक, यहां तक जो टोटल गैप है, दैट टोटल गैप इज गिवन 250 सेंटीमीटर। ओके, सो अब देखिए ये रंज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है, 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पे पहला केस लेते हैं, ये 25 है, ये 25 है, तो और ये कितना गैप हो गया इसमें, इसके बीच में और इसके बीच में टोटल गैप कितना हो गया इन दोनों के बीच में, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर के गैप में कितनी रंज आ गई, 1 2 3 आ गई, राइट। तो फाइंड कैसे करेंगे इसको, अगर मुझे नंबर ऑफ रंज फाइंड करनी है, एक छोटा सा केस ले लिया हमने पहले, 50 सेंटीमीटर अगर गैप होता, नंबर ऑफ रंज, सो टोटल डिस्टेंस 50 को, अगर एक जो रंज की गैप है 25, टोटल डिस्टेंस 50 को 25 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2, लेकिन कितने रंज आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, इसके बीच में कितने रंज आ रहे हैं 3, तो ये 2 ये आ रहा है, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट। टोटल divided by the gap in between the two runs plus 1, so it comes out to be 3 रंज आ गए हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज टोटल गैप आप ले लीजिए, ये टोटल गैप हो गया, अब एक ये हो गया 1 2 3 75, टोटल जो गैप है अपर रेंज और लोअर रेंज में 75 सेंटीमीटर का है और एक दो रंज के बीच में 25 का है। तो देखिए नंबर ऑफ रंज अगर फाइंड करूं इस केस में, नंबर ऑफ रंज इन दिस केस, टोटल गैप कितना है 75, अगर 75 को द गैप बिटवीन द टू रंज इज 25, उससे डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 3, राइट। लेकिन रंज काउंट करो कितने रंज आ रहे हैं, 1 2 3 4 रंज आ गए हैं, तो 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1 ऐड करने का कंसेप्ट जो है आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, 1 क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जब इससे काउंट करते हैं, एक जब 25 लेते हैं ना, तो यहां से एक काउंट करते हैं इसको, एक 25 है, लेकिन उसमें रंज कितने आ गए हैं, 2 रंज आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें +1 ऐड करते हैं, राइट। नाउ आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। अब आप आ जाइए मेन चीज पे, नंबर ऑफ रंज।
अगर गैप है 25 250, तो 250 को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। और क्या ऐड करेंगे इसमें? +1। अब ये +1 क्यों ऐड करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया है, राइट? तो देन इट कम्स आउट टू बी 25 कैंसल दिस, 10 + 1 = 11। तो इसमें टोटल 11 रन है, राइट? सो आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग हियर सेपरेटली टू यू, सो यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ रन कितने आएंगे? टोटल गैप है 250 डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन द टू, 25 से डिवाइड +1। ये +1 क्यों करते हैं ये मैंने वहां पे समझाने की कोशिश की आपको। ये 10 से कैंसिल होगा, इट कम्स आउट टू बी 11, राइट? नाउ इट इज इजी टू फाइंड SN इन दिस केस। SN का आइडेंटिटी हमें रिमेंबर होती है n/2 2a + n - 1 into d. So let us apply this identity. What is n in this case? n आया 11, 2a हमें पहले से गिवन था क्वेश्चन में 45, n - 1 d n की जगह पे रख देते हैं 11, तो ये आ जाएगा 10, 11 - 1 10, एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 25 थी लास्ट टर्म। सो इसमें फॉर्मूला नोट अप्लाई दिस वन, लेट अस अप्लाई दिस a + an आइडेंटिटी इन दिस केस, क्योंकि हमें डी फाइंड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वरना। a + an, so if we apply a + an, so what is a is 45 and an is 25, right? So that is also the identity and this is also the identity. So this identity is used when we know the last term. जब हमें last term पता होती है तो we prefer to use this identity to find out the sum. It comes out to be 11/2, 6 2 7, 2 cancel this 35 times, so it multiplied, it come 385. So the sum of the range is 385 centimeter, right? So the total length, so what you need to write, the length of the wood required for the range is, this is equal to 385 centimeter, right? I hope this question is clear to you all. Yes, sir. Anyone, could you please match the answer of this question? Yes, sir, it's right. Okay. Now let's move to the next question. Look at this question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49, so that there is a value of x such that the sum of the two numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it. Find the value of x. Okay, so what is the scenario here? Let me explain this thing to you. यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर ऑफ हाउसेज हैं, नंबर ऑफ हाउसेज आर देयर। एक हाउस हो गया यहाँ पे, एक हाउस यहाँ पे हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 5 6, और ऐसे चलते चलते 49 हाउसेज आर देयर, 49 48 47, तो 49 हाउसेज हैं। अब इनके बीच में एक हाउस ऐसा है यहाँ पे जिसके ऊपर एक्स नंबर है, हाउस नंबर एक्स। सो लेट मी राइट द नंबरिंग, दिस इज हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे एक्स, हाउस नंबर एक्स है, यहाँ पे 47 48 एंड 49, ये हाउस के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है? इसके एक्स के बाद वाला हाउस नंबर क्या होगा? X + 1. यस, और इससे पहले वाला X - 1. x - 1, एब्सोल्युटली राइट। एक नंबर ज्यादा होता है नेक्स्ट हाउस पे तो +1 ऐड हो जाएगा, और इससे पहले वाले पे x - 1, ऐसे चलते आ रहे हैं हाउसेस और ऐसे जा रहे हैं, ठीक है जी? अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, ये हाउस नंबर कौन सा है। तो एक चीज उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहां से यहां तक हाउस नंबर का अगर सम करें, x से पहले वाले हाउस नंबर्स का और x से बाद वाले हाउस नंबर का सम करें, तो इनका जो सम है वो सेम आएगा, सम सेम आता है। इन दिस केस द सम इज सेम, राइट? अब देखिए सम कैसे करें, इसमें एक एपी इसको मान लेते हैं, एक एपी इसको मान लेते हैं, तो जो सम ऑफ हाउसेज आएगा यहाँ पे, सम ऑफ हाउसेज नंबर फ्रॉम 1 to x - 1 is equal to sum of houses, sum of number of houses from
x प्लस 1 टू 49, तो ये सम इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की दोबारा से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। लुक एट दिस, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। जो उससे पहले आ रहे हैं और जो उसके बाद उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका सम सेम है। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a इन दिस केस a1 है। लास्ट टर्म क्या है, an देखिए लास्ट टर्म x माइनस 1 है। इसमें n कितना है, n 1 2 3 4, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही n भी है यहाँ पे, तो n भी x माइनस 1 है। तो हमें इसमें Sn फाइंड करना है। इस केस में Sn आएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n कितना है, n यहाँ पे है हमारे पास x माइनस 1 बाई 2, तो Sn आ रहा है 2a, a है 1, n है x माइनस 1 और d है हमारे पास, व्हाट इज d इन दिस केस, d की जरूरत भी नहीं थी। लेट अस अप्लाई दैट a प्लस an आइडेंटिटी हियर आल्सो। यहाँ पे भी a प्लस an वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है a is 1 and an is x minus 1, so 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारे पास x minus 1 by 2 into x by 2, तो ये आ गया Sn, फर्स्ट वाले केस का Sn आ गया इधर वाले हाउसेस का। ठीक है, अब इधर वाले हाउसेस का Sn फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए a कितना है यहाँ पे, यहाँ पे a है x प्लस 1, a कितना है x प्लस 1। ठीक है, an कितना है, an है 49, n और चाहिए हमें, n और चाहिए यहाँ पे। तो हाउ टू फाइंड आउट द n इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, n फाइंड आउट करना। तो देखो n कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हाउस नंबर 1 है, तो इसमें कितने हाउसेज, n कितने हो गया, n आ गया 6। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे 49 6 कैसे आया, देखो 6 में से लास्ट वाले हाउस में से पहले वाले हाउस का नंबर माइनस करेंगे तो आएगा 5, लेकिन हाउस कितने हैं 6, तो प्लस 1 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाउस कितने हैं टोटल 49, 49 में से इससे पहले वाले हाउस कितने हैं, x हैं, पहले वाले हाउस कितने हैं, x। तो अगर 49 में से यहाँ पे प्लस 49 में से x को हटा दें, ये आगे वाले जो x तक हाउस आए हैं उनको हटा दें 49 हाउसेज में से, तो हमारे पास n आ जाएगा। तो n इज 49 माइनस x, ऐसे डायरेक्टली भी आ जाएगा। और जो प्लस 1 वाला कंसेप्ट बता रहा था मैं, 49 में से ये हाउसेज हटा दो x प्लस 1 वाले। ठीक है, तो यहां से ये सेकंड वाला कंसेप्ट जो ये लिंक किया था अभी, इससे अगर मैं बताऊं तो x प्लस 1 में से यहां से यहां तक हाउस नंबर अगर निकालने हैं, तो 49 में से x प्लस 1 को हटा दो और क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 करोगे तो ये 1 इससे कट जाएगा, ब्रैकेट होंगे, तो 49 माइनस x ही आएगा, राइट। नाउ लेट अस फाइंड Sn इन दिस केस। Sn यहाँ पे फाइंड कर लीजिए, n बाय 2 a प्लस an, सो Sn इज इक्वल टू n कितना है 49 माइनस x बाय 2, a कितना है x प्लस 1 एंड दिस इज 49, सो Sn कैन बी रिटन एज, Sn डैश ले लेते हैं इसको, so it can be written as 49 minus x by 2 and it is 50 plus x. So question में given है, suppose this is equation 2, this is equation 1, it is given in the question, take these two equation equal, ये दोनों equal हैं, therefore x minus 1 into x by 2 is equal to 49 minus x and 50 plus x by 2. So let us solve it and find the value of x. तो ये कट गया यहाँ पे, open the bracket, it become x square minus x, it become 49 into 50 plus 49x minus 50x minus x square. Let us solve it, take this x square on this side, it become 2x square, 49 minus it become minus x, so minus x से ये minus x कट जाएगा इस साइड में, तो it can be written as is equal to 49 into 50, so we can, ये 2 इसको कट कर देगा 25 times, so x square x is equal to root of 49 into 25, so we can say that 7 into 5, so that is house number 35. तो कौन सा हाउस नंबर था वो, 35। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
In this case, the value of x is 35. It's time up. Rest of the thing we will discuss in the next class.